Good morning, students. In the last class, we have completed a chapter 4, that is poverty. And in today's class, we are going to start a new chapter, chapter 5, that is human capital formation in India. So, in this chapter, what we have to study, first one is what is the physical capital and the human capital, in which we have studied the meaning of the physical capital and the human capital, a comparison between the physical capital and the human capital. Next one is human capital formation, in which we have to study the what are the different sources of the human capital formation, what are the importance of the what is the importance of the human capital formation, and what are the different problems which is facing which is faced by the human capital formation. Next topic is education sector in India, in which we have to study the importance of education, growth of education sector in India, educational achievement in India, inadequacies and challenges in education, and the future prospects of the education. So, in this chapter, we will covered all these topic. Okay, so let's start. Human capital formation in India. One factor that has made a great difference in the evolution of the mankind in man's capacity to store and transmit knowledge. We need a great deal of training and skill to think efficiently. We know that the labor skill of an educated person is more than of an uneducated person, and hence the former is able to generate more income than the latter, and his contribution to economic growth is consequently more. Education is sought not only as it confers higher earning capacity on people, but also for its other highly valued benefits. It provides knowledge to understand the changes taking place in society. It also stimulates innovation. Moreover, the availability of the educated labor force facilitates adaptation of the new technologies. Human resources can be turned into human capital like engineers, doctors by investing in education and health. The investment brings higher return in the form of economic growth. We need good human capital to produce other human capital, like doctors, engineers. This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. Okay, so one factor one factor that has made a great difference in the evolution of the mankind is man's capacity to store the and the transmit knowledge. Okay, the basically one factor, ऐसे फैक्टर जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड, कि मैनकाइंड में एक इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो क्या होता है, मैंस की कैपेसिटी टू स्टोर एंड द ट्रांसमिट नॉलेज, कि वो कुछ नॉलेज को कितना वो मैन क्या है स्टोर कर रहा है, और उसी नॉलेज को वो कितना ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र कर रहा है. ओके, सो एक यही ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो एक ग्रेट डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी मैन में, कि मैन क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन भी कर सकते हैं, नॉलेज को स्टोर भी कर सकते हैं, एज वेल नॉलेज को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं. So we need a good deal of training and skills to do things efficiently. Okay, if any individual, whether it is male or female, if they want to do work with the effective and efficiently manner, they have to a good deal of training and the skills. Okay, अगर किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, या तो वो कोई मेल है, फीमेल है, मैन है, वुमेन है, अगर उनको हम कहेंगे कि वो वर्क इफ़ेक्टिवली करें, तो वो वर्क इफ़ेक्टिवली कैसे कर पाएंगे, जब उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और प्रॉपर स्किल होगी. ठीक, अगर उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉक्टर को ले रहे हैं, इंजीनियर को ले रहे हैं, टीचर को ले रहे हैं, अगर उनके पास कोई स्किल नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कि वो ट्रेंड नहीं होंगे, तो दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क वेरी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो इस कंडीशन में अगर उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो अपने जो भी प्रोफेशन में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. सो टू
be very effective and efficient, the person should have the some kind of training as well as some skills also. So we know that the labor skill of an educated person, okay, sorry, labor skill of an educated person is more than of an uneducated person. Okay, we know very well, अगर कोई लेबर है, उसके पास कोई स्किल है, ठीक है, उसकी स्किल को जब हम कंपेयर करते हैं वेदर अगर वो एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड पर्सन की जो स्किल है वो क्या होगी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट होगी व्हेन वी कंपेयर इट टू दी अनएजुकेटेड पर्सन। कि अनएजुकेटेड पर्सन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे एजुकेटेड पर्सन का, तो जो एक स्किल होगी, ट्रेनिंग होगी, वो किसी भी एजुकेटेड पर्सन के पास ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने वैसी काइंड ऑफ क्या लिया है, ट्रेनिंग लिया है, इसलिए उसको क्या होगी, कोई भी उसका जो भी वर्क वो करेगा वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हेंस द फॉर्मर मीन्स द एजुकेटेड पर्सन is generate more income. If any person is more educated, then ultimately he will generate the more income than the latter means uneducated person. So and his contribution to economic growth is consequently more, और जो उनका economic growth में जो भी contribution होगा it will also be too much more। कि educated person का जो भी contribution होगा in the economic growth वो क्या होगा, as comparison to uneducated person, the contribution of the educated person will be the more। Okay, so education is sought not only as it confers high earning capacity on people but also for its other highly valued benefit। Okay, अभी अगर कोई एजुकेशन लेता है, अब एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि बस उसकी एक वो कैपेबल हो गया है कि वो ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, बट दे ऑल्सो फॉर दी सम हाईली वैल्यूड बेनिफिट। अब उस एजुकेशन लेने से उसके पास और भी अदर बेनिफिट्स भी अर्न होंगी। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। सो अभी क्या होगा, उसके पास इतनी इट प्रोवाइड नॉलेज, अगर वो कोई एजुकेशन ले लेगा तो उसके पास उसको नॉलेज प्रोवाइड होगा सो दैट दे एबल टू अंडरस्टैंड दी टेकिंग चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी सोसाइटी। कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं वो उनको ईजिली क्या कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसके पास क्या होगा, उसको नॉलेज मिलेगी। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो बस एक बहुत ज़्यादा हाई, अगर उसके पास एजुकेशन है तो वो बहुत अच्छी जॉब ले लिया तो उसके पास इनकम भी हो गई, वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि जो भी सोसाइटी में कुछ चेंजेस अकर्स हो रहे हैं, जो भी चेंज हो रहे हैं उसको वो ईजिली क्या कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा। और he or she will also provide the knowledge to understand the changes, whatever the changes in the society, he or she will adapt that changes। Okay, so it also stimulates innovation। okay, अभी उसके पास knowledge हो जाएगी तो वो उसको stimulate करेगा, मीन्स प्रेशर देगा कि वो और ज़्यादा इनोवेशन की ओर भी करे। अब एजुकेटेड है तो उसके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी हो जाएंगे और वो न्यू आइडियाज़ की ओर मूव करेगा, आज क्रिएट करेगा न्यू आइडियाज़ की वो जिस भी एरिया में है वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कर सके। सो मोर एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स adaptation of the new technologies। okay, if people of the people is too much educated, so he will he will facilitate the adaptation of the new technology। वो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनको क्या कर लेगा, ईजिली अडाप्ट कर लेगा। जैसे सोसाइटी में कुछ भी चेंज हुआ, आप किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को देखो जो अनएजुकेटेड है और ऐसे को देखो जो एजुकेटेड है, तो वो जो एजुकेटेड है वो उन सिचुएशन को ईजिली अडाप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। बट अनएजुकेटेड पर्सन को देखोगे वो कहेगा अरे ऐसा थोड़े होता है, ये तो एकदम गलत है। कुछ भी जो भी सोसाइटी में चेंजेस अकर्स हो रहे हैं, सो इसलिए कहा जाता है कि जो उनकी एक थिंकिंग होती है किसी एजुकेटेड पर्सन की, वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती है when it compares with the uneducated person। okay, so how human resource can be turned into human capital like
इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बाय इन्वेस्टिंग इन दी एजुकेशन एंड हेल्थ। जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं वो क्या हो, ह्यूमन रिसोर्स मीन सिंपली मैन पावर, वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल में। फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल ह्यूमन कैपिटल्स आर द इंजीनियर्स, डॉक्टर बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ, कि वो कुछ एजुकेशन और हेल्थ में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड और दी टर्न्ड इनटू द ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर एक्सेट्रा। सो दिस इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो भी ये इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है कि वो कुछ भी ले रहा है, डिग्री ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो इंजीनियर की बीटेक की डिग्री ले रहा है, इफ़ ही इज़ इन्वेस्टेड अबाउट दी 5 लाख और 6 लाख, उसने अपनी एजुकेशन के लिए 6 लाख इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जितना इन्वेस्टमेंट हो उससे ज़्यादा वो रिटर्न प्रोवाइड करे। मींस अगर वो 5 लाख उसने अपनी एजुकेशन में बीटेक की 4 इयर्स में उसने इन्वेस्ट किया, सो जब उसकी जॉब लगे तो वो उससे ज़्यादा ही रिटर्न करे, ये नहीं कि वो 2 लाख और 3 लाख में हो जाए, तब ये यहाँ पे एक प्रॉपर रिटर्निंग नहीं होगी। जो इन्वेस्टमेंट किया गया, जो एजुकेशन लिया गया, वो उतनी अच्छी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना हुआ था उतना रिटर्न नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस दिस इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो अगर इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा करे, इन्वेस्टमेंट जितना किया है उस इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन दी एजुकेशन एंड हेल्थ, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, सो दैट द कंट्री विल बी इन द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर कंट्री क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे होगी, वे पे होगी। So we need good human capital to produce other human capital. Okay, so there should be a good human capital. For example, there should be a good engineers, doctor, teachers, so that they will produce more effective human capital. अगर अच्छे human capital होंगे तो they will ultimately produce the other human capital. This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of the human resources. Okay, so that there should be more and more investment is done to the human capital to produce the more human capital out of the human resources. जो भी human resources हैं उनमें से अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी human capital है वो invest करेंगे other human capital पे, so इससे क्या होगा कि उसमें से अच्छे इफ़ेक्टिव ह्यूमन कैपिटल आएंगे फ्रॉम दी ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी मैन पावर है, मैन पावर मीन जो भी मैन है, वुमेन है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी वर्ल्ड, किसी भी कंट्री में, सो दैट अगर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाएगा, मनी इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इफ़ेक्टिव ह्यूमन कैपिटल भी हमें मिलेंगे। ओके, सो नाउ we will study the what is the physical capital and what is the human capital. Meaning the economic growth of a country is possible only when there is a efficient use of the scarce resources, as physical capital is needed to make use of physical resources for production. Similarly, human capital increases the efficiency of human resources for production. Okay, so the economic growth of a country is possible only when there is a efficient use of scarce resources, as we know very well that the resources are very limited. So इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री तभी पॉसिबल होगी जब जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम हैं, उनका हम क्या करें, एफिशिएंटली यूज़ करें। स्कार्स रिसोर्सेज क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में हैं, उन रिसोर्सेज का हमको क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। इट डजंट मीन कि हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी स्कैर्स हैं और हम क्या करें, उनका यूटिलाइज अच्छे से एक्सेस यूटिलाइजेशन करें, नहीं। जो भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इन दैट केस देयर शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज, एज फिजिकल कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक द यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ओके, कि जो भी फिजिकल कैपिटल है वो क्या होती है, उनकी नीड होती है फॉर द यूज़ ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज। जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे
लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया. सो फिजिकल कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक द यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, फिजिकल कैपिटल का हम यूज़ क्यों करते हैं कि फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम लोग मोर एंड मोर प्रोडक्शन कर सकें. सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर production. Okay, just like the physical capital, human capital also increases the efficiency of ह्यूमन रिसोर्सेज. कि अगर कोई भी ह्यूमन है, मीन नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उसके पास कोई ह्यूमन कैपिटल होगा, सो दैट देयर शुड बी और देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. कि ह्यूमन कैपिटल होगा किसी भी ह्यूमन रिसोर्स से. ह्यूमन रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्स नॉर्मली मैन वुमेन जो भी है, और ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो भी एजुकेशन लेगा. तो अगर वो किसी की ट्राइब की ट्रेनिंग लेगा, स्किल लेगा, सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस दी और दी इंक्रीज दी प्रोडक्शन. ओके, सो there are two types of the capital used in production. Okay, we know very well that whenever we will produce the commodity, there are two types of the capital which we used in the production. The first one is physical capital and the second one is human capital. What is human capital? It includes all those resources which are required for the further production, like plant and machinery, factory buildings, equipment, etc. Okay. Physical capital means it includes all those resources which are required to the for the production. ठीक है, हमें क्या करना है कि कोई भी फर्दर प्रोडक्शन करना है, तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं फॉर further production, it is called the physical capital. And what are the different physical capital? Like plant and machinery, factory building, equipment. Okay, these all are using for the producing the more commodity. So these all are called the physical capital. Okay, and next one is human capital. It refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge in a nation एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि कोई भी कितना स्टॉक है किसका? स्किल्स का. किसी इंडिविजुअल के पास कितनी स्किल है, कितना वो कैपेबल है, कितनी उसके पास एबिलिटी है कोई भी वर्क करने की, कितना वो एक्सपर्टाइज है किसी भी एरिया में, उसके पास कितनी एजुकेशन है और कितना नॉलेज है इन अ नेशन. किसी भी नेशन में किसी भी इंडिविजुअल के पास कितनी नॉलेज है, कितना स्किल्स है, कितना कॉम्पिटेंस है. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी क्या है? स्टॉक की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना उसके पास कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल. ओके, सो द स्टॉक ऑफ द फिजिकल कैपिटल इज इसेंशियल in the process of economic growth of a country. If there is low investment in human capital, utilization of physical capital will be at low pace, leading to the low level of economic growth and improvement in the mental capabilities, skills, expertise of the people, support and increase in the human capital as it enable the human factors to produce more. Okay, what does it mean? It says the stock of the human capital is essential in the process of economic growth of a country. Okay, ये कह रहा है कि जो भी फिजिकल कैपिटल इज़ वेरी इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर कंट्री में फिजिकल कैपिटल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल लैंड नहीं होगा, मशीनरी नहीं होगा, इक्विपमेंट नहीं होगा, सो दैट the country will not produce more and more commodity and the country will not in the path of the economic growth. In that condition, there should be a stock of the physical capital, and if there is low investment in human capital, so that the utilization of physical capital will be at the low pace, leading to the low level of economic growth. और अगर ह्यूमन कैपिटल में प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल आप ही हो, आपके पास अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने किसी भी काइंड ऑफ एजुकेशन नहीं ली, तो आप उन फिजिकल कैपिटल का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओगे.
अगर आप ये 11th में हो, 12th में हो, या कोई भी आप डिग्री ओरिएंटेड हो, कोई डिग्री ले रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री होगी तब आप क्या कर सकते हो, फिजिकल कैपिटल को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। जो एजुकेटेड पर्सन है वो किसी भी स्किल्स को, किसी भी मशीन्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा एज़ कंपेरिजन टू द अदर पर्सन, सो दैट इट फिर अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे कम होगा, सो अल्टीमेटली जो भी फिजिकल कैपिटल को वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएगा, एंड दी फिजिकल कैपिटल विल एंड द प्रोडक्शन विल ऑल्सो विल बी एट दी लो पेस, कि उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, एंड लीडिंग टू लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर क्या होगा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, लो लेवल। सो टोटली इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी ह्यूमन कैपिटल, कि कितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे कर रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिजिकल कैपिटल को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और देयर विल बी डिक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ह्यूमन कैपिटल पे अगर प्रॉपरली स्किल्स है, हमारे पास एबिलिटी है, so that we are able to use the physical capital effectively as well as efficiently, so that there will be increase in the economic growth. Okay, so an improvement in the mental capability, skill and expertise of the people support an increase in the human capital. Okay, if there is improvement in mental capability, अगर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, स्किल्स इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपर्टाइज हो रहा है पीपल, कोई भी पीपल एक्सपर्ट हो रहा है किसी भी एरिया में, सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल एज इट इनेबल द ह्यूमन फैक्टर टू प्रोड्यूस मोर। ओके, एंड सपोर्ट हो रहा है किस पे, कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये सारी स्किल्स होगी, एबिलिटी होगी, मेंटल कैपेबिलिटी होगी, वो किसी भी कोई भी इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज होगा किसी भी एरिया में। फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड में एक्सपर्टाइज है, सो अगर वो उस एरिया में एक्सपर्टाइज होगा, सो दैट इट इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल एंड इट इनेबल द ह्यूमन फैक्टर टू प्रोड्यूस मोर। अब ये क्या कर रहा है, फैक्टर ह्यूमन, जो ह्यूमन एज अ फैक्टर है, वो क्या इनेबल कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। So it is the physical capital and the human capital. Physical capital means all those resources which are used for the further production, जो हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करें जितने भी रिसोर्सेज को, उनको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। एंड द ह्यूमन कैपिटल इज सिंपली दी स्टॉक ऑफ द एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, कॉम्पिटेंस, एजुकेशन एंड द नॉलेज फॉर द doing the any kind of work. It is called the human capital. So if there is low investment in the human capital, so any individual is not able to use the physical capital very effectively and the efficiently, and there will be ultimately low level of the economic growth, and the vice versa. If there is high investment in the human capital, so the utilization of the fixed capital will be also very effective and efficient, and ultimately it increases the economic growth of the country. Okay, so next one is, what are the difference between the physical capital and human capital? Okay, physical capital and human capital, it is used to produce goods and services, and it increases, human capital increases the efficiency to produce goods and services. Physical capital is sold in the market. Human capital, it is not sold, only the services of the human capitals are sold. Physical capital, it depreciates over the time due to continuous use or due to change in the pattern of demand. But human capital, there is no depreciation of human capital, but investment in human capital are required to maintain its efficiency. Physical capital like machinery is separable from its principle. Human capital cannot be separated from the principle. Formation of the physical capital is an economic and technical process. Formation of human capital is partly a social process and a partly of conscious effort of the possessor of the human capital. Okay, so it's very simple to understand both of them. What it says, it is used to produce goods and services. Okay, we know very well कि इसमें क्या होता है, different kinds of
रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन. ओके, सो दीज फिजिकल कैपिटल आर यूज फॉर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. हम इनका यूज़ क्यों करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके. एंड ह्यूमन कैपिटल इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें क्या होता है, हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी. और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिंपली अगर हमको कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, ABCD कोई भी कमोडिटी है, तो अगर कोई कमोडिटी है, कोई पेन पेंसिल कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल और क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए. तो ये क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल कि किसके थ्रू हम उसको प्रोड्यूस करेंगे. और इसको हमको कैसे प्रोड्यूस करना है, हम कितने इफ़ेक्टिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी ह्यूमन कैपिटल. मीन्स कि हमारा कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, और प्रॉफिट हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो. सो इट इज़ दी एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस दी दोज गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, so next one is physical capital is sold in the market. You know very well, land, machinery, these all are the goods and it can be sold in the market, but okay, human capital it is not sold. Only the services of the human capital are sold. ये क्या होती हैं, human capital services होती हैं. For example, education की service, health services, these all are the services. And you know very well the difference between the goods and services are the, हम सर्विसेज को टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट. ओके, सो इट इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट. द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, सर्विसेज कैसी, एजुकेशन की अगर सर्विस ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट इसको हम लोग मार्केट में सोल्ड नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट इज इट डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज और ड्यू टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड. ओके, वी नो वेरी वेल, जो भी फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनका हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इनका हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती जाती है. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल देयर इज़ नो डेप्रिसिएशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, बट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी. ओके, अब अगर ये देखते हैं, क्या अभी कोई इंडिविजुअल है, वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर वर्क कर रहा है, क्या 5th ईयर, 6th ईयर में वो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करने लगी, कभी नहीं. वो जितना ज़्यादा उस पर वर्क करेगा वो उतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज होता जाएगा उस कंटेक्स्ट में. जैसे कहते हैं ना कि कोई एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक बार बार पढ़ने से हमें क्या होता है, हमें ज़्यादा समझ में आता है कि हमें वो धीरे धीरे और कम होता चला जाता है, नहीं, वो हमें और ज़्यादा समझ में आता है. इसलिए इसमें क्या कि इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है. बट अगर हमको क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट इस पर करना पड़ता है. किस कंडीशन में, जब हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करनी होती है. जैसे बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आपका ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ये सब क्यों प्रोवाइड की जाती है, कि कोई इन्वेस्टमेंट करता है इन सारी ट्रेनिंग्स पे कि वो अपनी एफिशिएंसी को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके. सो इसलिए ये सारे क्या हैं, इन पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है. बट अगर हमको अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल कैपिटल इज़ सेपरेबल फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स द वन हु इज़ यूजिंग इट. तो ये जो सारे गुड्स हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल, बट इन द केस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल. मीन्स ये क्या हो सकते हैं, अब जैसे मैंने एजुकेशन लिया, क्या मैं और एजुकेशन एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. बट मैंने कोई गुड्स को यूज़ किया, मशीन को यूज़ किया, तो वो दोनों अलग हो गए ना, कि मैंने जितने दिन तक यूज़ किया वो तब तक मैंने इसको यूज़ किया, बट अब मैंने सेपरेट कर दिया, अब कुछ और गुड्स. बट ह्यूमन कैपिटल, अगर एजुकेशन की सर्विस हमने लिया है, वो कभी भी किसी इंडिविजुअल से सेपरेट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ दी फिज़िकल कैपिटल इज़ एन इकोनॉमिक एंड दी टेक्निकल प्रोसेस. कि अगर हमको फिज़िकल कैपिटल को फॉर्मेट करना है, मींस फॉर्मेशन करना है, तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है. इसमें मनी इन्वेस्ट होगा एज वेल एज बहुत टेक्निक्स लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस इट. बट द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इज़ पार्टली अ सोशल प्रोसेस. वी नो वेरी वेल दैट द एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, दीज आर ऑल आर दी सोशल प्रोसेस.
तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये पार्टली सोशल प्रोसेस होता है एंड पार्टली अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द ह्यूमन पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। और पार्टली क्या होता है, पार्टली मीन्स हाफ हाफ, कि ये सोशल प्रोसेस भी होता है और ये कॉन्शियस एफर्ट भी होता है। मीन्स कोई इंडिविजुअल अपना एफर्ट करता है प्रोसेसर की जो इस सारे ह्यूमन कैपिटल को ले रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो द एफर्ट बाय द प्रोसेसर or the one who is taking the human capital. So physical capital is basically used, why we use to produce different goods and services we use to produce, but human capital is simply it increases the efficiency to how we use or how to use the different goods and services to become the more efficient as well as more effective. Okay, so it's all about the today's class. We will continue further in the next class.